the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Class, Assalamu alaikum to all of you. The chapter name is the process of organizational development. You will have to keep in mind that the process discussed through the chapter number 4, 5 and 6 of your book, and all the segments, all the process elements are explained in a very detailed manner in a chapter wise, but you have to be focused. And when I will ask you about the process of organizational development, you will have to cover all the aspects, and you will explain them accordingly according to your given question. So the book is the same, that is Organizational Development and Change by Thomas D. Cummings and Christopher G. Worley, and the process of organizational development. The process of organizational development is entering and contracting, diagnosing, individual level, group level and organizational level diagnosing, then collecting, analyzing and feeding back diagnostic information. Okay, what are these things? We have been discussing about the change process in our previous lecture, and change theories. If I could review you about the change management theories, they were about the Lewin's change model, then action research model, and then we discussed about the positive model. We discussed the change model, like Lewin's model, in which there are just three steps. Then there is the action research model. There were 8 to 12 steps in that process, and in the positive model, that is also called the appreciative inquiry, and how they were different and differ to each other, and what is the difference between the linear model and the positive model, and what are the theories behind these models. So I will repeat it again, that the theories behind the linear models are the traditional psychological theories. Because we are concerned with the social change process of the organizations, not the technological changes, not about the other change matter, just like structural changes, but we are concerned with the social change process. Whenever the organizations want to change, they bring change in their organization, obviously they have to concern with the structures and with the technological improvements, and but what impacts the organizational members, and what effect, what leads what makes them because whenever the organization want to bring the change, there are always the organizational members who just sometimes become obstacle to change process, and they sometimes don't let you let the change process successful. So this is a very critical critical and very important development regarding that are being covered in the organizational development course. So we have discussed three theories, and then in the previous lecture, in the first chapter, we discussed about the background of these theories, and what were the what had been the scenarios, what were the that gave rise to the organizational development field. So the process through which organizational development now how we conduct organizational development in our organizations, that is entering and contracting. The first process, the name of the first process, entering and contraction. Here you will keep in mind that you are a OD practitioner. Okay, you have to make a contract with your client organization. An organization hires you for a particular period of time,
and you make a contract with that organization, and you make some any type of contract is more related to in a written form. So the client organization comes to you and says that this type of change we want to bring in our organization, and if along with these organizational measures, or along with these change measures, we need to settle our organizational employees so that they could not be hype could not be created in the organization, and they could carry on their work along with the change measures being in process. So the entering and contracting, then diagnosing and individual level, group level, and organizational level diagnosing. And what are these? We will explain them in one by one. Okay, let's move to the entering and contracting. For example, the client organization, it will depend on the client organization and your expertise. Sometimes in organizational development, practitioners after working with a specific industry makes their reputation in that sector, and they started identifying making their identification through that sector particularly. For example, if the company is had been more involved in the change measures related to telecommunication industry, then their reputation would have been built in that regard. But when the same organization will come to bring the change in the banking sector, the organization couldn't be their approaches to establish the change measures couldn't be the same. So things can be different, and things can be very things can change in industry to industry, because this is not a specific. We have studied the different change models. Still they are not the means you don't have the OD practitioners are not necessarily will follow the same organizational change management models, but they will identify different ways according to the industry, according to the situation, and according to the situations and the problem circumstances being created in the organization. According to the situation, according to the nature of the client, the organization development leaders make the decision regarding regarding how to bring the change measures and to make the change successful for the organization. So the first point here is that for example, as costs are highly, so this slide has started from the from an example. The problem that in a client organization bring before the organizational member was that the costs are high and lying of members is an option. Okay, यहाँ पर जो आपको यहाँ पे एक समझाने जा रहे हैं बात, वो ये कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है दैट इज़ बीइंग इंक्रीजिंग. And they suggest that if you will the cost is increasing, so we'll have to lay off our members, or downsizing means अपने employees को निकालना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है. अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही. ठीक है, अब आपके पास एक ये ऑप्शन है, इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एसेट्स की बजाय लायबिलिटी समझती है, एक्सपेंस समझती है, तो इस ऑप्शन पे वो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो उसको डाउन साइज़ किया जाए, और ऐसे आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर ले कि जो उसको लगे कि ये इनके बगैर गुजारा नहीं है. ठीक है, अगर उनको बचा लिया जाए, उनको रोक लिया जाए, और उसके अलावा फिर दूसरे मेंबर्स को निकाल दिया जाए. बट कीप इन माइंड कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं वो बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर. अब वो बुरा इम्पैक्ट कैसे डालती हैं?
कि सब मेंबर्स के अंदर फिर लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, सारे एक दूसरे से कंपेटिटिव हो जाते हैं और हर एक के अंदर एक फियर पैदा होना शुरू हो जाता है और सारे समझते हैं कि पता नहीं हमने यहाँ पे रहना है कि हमने नहीं रहना है। और जब इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, उनका कल्चर है, वो कस्टमर फोकस नहीं रहता और वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करने की हैं। और दूसरी बात कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने जब पहले मेंबर्स को हायर किया तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल एक ख़ास लेवल पे था और इस वजह से उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया। और जब उन्होंने हायर कर लिया तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसकी वजह से यानी कि अब ज़ाहिर है कि एक प्रोडक्टिविटी का एक ख़ास लेवल होता है और वो थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहता, कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं। और जब अप का सीज़न था तब आपने हायरिंग ज़्यादा कर ली और अब डाउन का सीज़न है तो आप उसको डाउन साइजिंग करना चाह रहे हो, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि द साइकिल of ups and downs carries on in throughout the year, and don't need to worry about the productivity regarding that. You have to make that strategy that how to make the maximum utilization of your members while they are the part of your organization. सो द एसेट्स, कोई भी जो एसेट्स होते हैं आपको वो एकदम से डिस्पोज नहीं किया जा सकती क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक ख़ास इंफॉर्मेशन और एक ख़ास ट्रेनिंग, आपका एक्सपेंस जब आप उनको ट्रेन करते हो एम्प्लॉयज़ को, वो आपके लेवल पे होता है, आपके पहले ही एक्सपेंस हो चुका होता है और आपने एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज करना अनटिल एंड अनलेस कि वो आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं रहे, तो फिर उनकी भी एक अच्छे तरीके से उनको उनकी डाउन साइजिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। और दूसरी बात कि आपने एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई और वो एम्प्लॉय जो है जब वो चला जाएगा तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थ्रू आउट दी कंट्री एक प्रिवेल करना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की सिनेरियोज हो, जब प्रोडक्टिविटी लो हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स को कहती हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहती हैं कि आप कहीं और चले जाएं, आप कहीं और आपने जॉब सर्च वगैरह कर लें। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चले तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि क्रिएट होती है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, जैसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, जो डेवलप कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह दे देती हैं कि जब आपके मेंबर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगी। लेकिन ऐसा जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होता नहीं है। अब जिस तरह से अगर आप कोरोना वायरस की वजह से देखोगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का इस वक्त डाउनफॉल नज़र आ रहा है और डाउनफॉल की वजह से जैसे मेजर एयरलाइंस जो हैं उनके अंदर भी स्टाफ की वो कह रहे हैं एक्सेस है और इस तरह से, क्योंकि वो काम उस तरह से नहीं हो रहा और हर चीज़ हर तरह का जो बिज़नेस है वो इस वक्त डाउन जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर आपको जब जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो सिचुएशंस हैं इस वक्त की वो भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो और कॉस्ट उनको बहुत हाई है और ज़ाहिर है कि आपने अपना काम भी होप्स हो कि 3 से 4 माह के बाद ये जल्दी, इससे भी जल्दी अल्लाह करे कि हमारे ये हालात ठीक हो जाएं, तो हम लोगों को ये चीज़ को दोबारा उस पैटर्न को फॉलो करना है। तो तब आपके पास वर्कफोर्स कहाँ से आएगी, तब आप कहाँ से उनको लाओगे और अपने कामों को करोगे। तो हाई कॉस्ट जो है, सेकंड पॉइंट मैं पढ़ने जा रही हूँ, हाई कॉस्ट में रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल इनइफेक्टिवनेस। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर रनिंग पोजीशन में, अब ये मैंने आपके साथ सिर्फ जो एग्जांपल शेयर की है दैट इज़ फॉर द जस्ट फॉर द टाइम बिंग, ये इस टाइम के लिए, लेकिन ये चेंज मेजर्स की बात नहीं हो रही। अब जो डाउनफॉल होता है या डाउनफॉल एंड अपवर्ड ट्रेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो थ्रू आउट द ईयर रहता है और हर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब कि जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको पता होता है कि हमारा इस महीने में ये डाउनफॉल या ये ट्रेंड है और इन मंथ्स के अंदर ये अपवर्ड ट्रेंड है।
ठीक है। ये हर बिज़नेस के अंदर, हर बिज़नेस, कभी इकोनॉमी का ट्रेंड किसी बिज़नेस की तरफ होता है, कभी इकोनॉमी का ट्रेंड किसी तरफ होता है। और जो मेच्योर बिजनेसेस होते हैं उनको ये पता होता है कि जो कि बहुत देर से बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये इस वक्त टाइम हमारा, हमने इस वक्त की कॉस्ट किस तरह से फुलफिल उसको उन मैयर्स को कैसे उनको पूरे ईयर के ऊपर स्प्रेड करना है। सो ये इस तरह की है कि आप जो प्रिलिमिनरी मैनर, आप जिस तरह से आपके आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के प्रैक्टिशनर हो, ओडी प्रैक्टिशनर हो आप, तो जब आपने क्लाइंट अपना सिलेक्ट करना है तो आपको उनके साथ किसी न किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना है। और ये हम बात कर रहे हैं प्लान चेंज की। अब ये जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो भी चेंजेस आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और उनको बाय फोर्स आप समझ लो कि उनके काम बंद है और ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर्स ले रही है वो इस वक्त प्लान्ड नहीं हैं, वो अनप्लान्ड चेंजेस हैं। और हम यहाँ पर ओडी जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, हम उस अनप्लान्ड चेंजेस की बात नहीं करते हैं, हम इधर सिर्फ प्लान्ड चेंजेस की बात करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलपमेंट स्टेजेस पे कंसिडर करती हैं और अपने हायर कर लेती हैं, ओडी प्रैक्टिशनर्स को हायर करती हैं। देन हाई कॉस्ट मे रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल इनफेक्टिवनेस। अब जब ऑर्गेनाइजेशन की जो है कॉस्ट अगर ज़्यादा जा रही है तो जाहिर है कि वो हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, अगर एम्प्लॉयज़ आपके पास ज़्यादा हैं तो वो आपके रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी एबल टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब जब आपके पास एक्सेस होता है ना स्टाफ का, जब और आपके पास जगह की शॉर्टेज है, चीज़ें शॉर्टेज हैं, तो आप वहाँ पर इनोवेटिव प्रोडक्ट को कंसिडर करना और उनके अंदर ऐसा जिद्दत लेके आना प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी मुश्किल हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी एबल टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट ड्यू टू द एक्सेसिव स्टाफ मेंबर्स। तो अब ये क्या है, उनका प्लान है, अब ये प्लान चेंज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको ऑर्गेनाइजेशन को लगता है उनकी इनइफेक्टिव हो गई है और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। जब उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है तो उनके मेंबर जो हैं उनके पास काम ही नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सक रहे, जिसकी वजह से कंपेटिटर्स जो हैं वो लीड ले रहे हैं और कंपेटिटर्स की पोजीशन हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बेहतर होना शुरू हो गई है या ज़्यादा हो गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी एबल टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और इस वजह से उनकी जो है मार्केट के अंदर रेपो कम हो गई है। इन अप्रोप्रिएट कस्टमर सर्विसेज देयर। और दूसरी बात ये भी पॉसिबल है कि आपकी प्रॉब्लम्स की हम बात करें कि हम अब इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को इश्यूज़ हैं और माइट भी इशू हो और इन इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे और इश्यूज़ हों, जैसे अगर एक्सेसिव स्टाफ है तो एक्सेसिव स्टाफ की वजह से आपके ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं और आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं आ सक रही। तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, इशू है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अकॉर्डिंग टू ओडी प्रैक्टिशनर आपको जब हायर किया जाता है तो तब आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि रूट कॉजेज़ क्या हैं प्रॉब्लम्स की, और प्रोडक्टिविटी लो हो रही है और आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ख्याल में कि एक्सेसिव स्टाफ हो गया है, और दूसरी बात उसका यही ख्याल है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ रहे, और उसका ये भी ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी इनइफेक्टिव हो गई है। एंड देन इनअप्रोप्रिएट कस्टमर सर्विस, उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत कम लग रही है उनको। दैन कॉन्फ्लिक्ट अमाउंट टू डिपार्टमेंट्स और पार्टीज आर इंक्रीजिंग। और या फिर ऐसी बात हो गई है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं आपस में, जो उनके आपस के ताल्लुकात है, कॉन्फ्लिक्ट अमाउंट डिपार्टमेंट पार्टीज आर इंक्रीजिंग। Then things may change due to high volatile environment and new events occur। अब जिस तरह से ऐसा होता है कि हाई वॉलेटाइल इन्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। अब जैसे आपको सीजन्स के मुताबिक अब देखोगे ये जो गारमेंट्स इंडस्ट्री या शू इंडस्ट्री है, ये वॉलेटाइल है, हाई वॉलेटाइल मार्केट है। हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है कि जहाँ पर आपको एक माह में 15 दिन का इनका होता है, आई थिंक 15 से 1 माह का इनका सर्कल होता है, और उसके बाद साथ ही वो लोग सेल में आ जाते हैं। देखिए मुसलसल उनकी एक्टिविटी
रहती है थ्रू आउट द ईयर। एक 15 दिन की उनकी सेल का टाइम होता है, और 15 दिन उनकी जो है वो पीक प्राइसेस का टाइम होता है। तो अब ये समझ लो कि जो वो अब जो हाई वॉलेटाइल इन्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर भी हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन जो ब्रांड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आप समझ लो कि जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनके प्रोसेसेस और हर तरह से और उनके वो मैयर्ड होते हैं, और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक हर तरह से इस्टेब्लिश कर लिया होता है। इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लो वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जो हाई वॉलेटाइल इन्वायरमेंट्स होती हैं उधर हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जब हाई वॉलेटाइल इन्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ को, जैसे हाई पीक सीजन्स के अंदर, अब जैसे अगर सीजनल बिजनेस होते हैं तो उसके अंदर अब ईद का सीज़न आ गया या फेस्टिवल्स हैं, उसमें आपने पहले ही लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि इन सीजन्स के अंदर आप ये जो है ये मैयर्स होंगे या ये आपके होंगे, और वो सीजनल ही आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब जो ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनके सामने इश्यूज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो अपने इश्यूज़ अपने सामने रखती है, और उसके बाद फिर ये देखती है ऑडी प्रैक्टिशनर्स के सामने रखती है और उनको कहती है कि इसको सॉल्व करें। तो और उनको जो सोल्यूशन का जो टाइम है, जब आपका लीनियर, जब हमने ये बात की थी, जब लीनियर चेंज की बात आती है, जब ऑर्गेनाइजेशन एक ख़ास पैराडाइम के ऊपर है और वो समझते हैं कि चेंज जो प्रोसेस है वो लीनियर है, अब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दे भी सकती है, और वो कहती है कि आप उससे या आप खुद ही जाके उसकी रूट कॉजेज़ फाइंड करेंगे। ये प्रॉब्लम है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, अब उसकी रूट कॉजेज़ जो हैं वो अपने आइडेंटिफाई खुद बहुत करती हैं। अब वो चेंज प्रैक्टिशनर्स जो हैं या ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं वो चले जाते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एनालिसिस करते हैं, आपके लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलके आपकी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से पूछते हैं, एम्प्लॉय से अपनी रेपो बिल्डअप करते हैं, और उसमें एक हाथ तो अब यहाँ पर जो है ये वाली जो फर्स्ट प्रोसेस का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले हमने क्या करना है उसमें एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करना है अपनी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आपने असल में करना क्या है, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी इस्टेब्लिश कि हाँ आपने करना क्या है, तो उसके बाद ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हो 6 मंथ्स का, और अकॉर्डिंगली उनको आप कहते हो कि 6 मंथ्स के दौरान इतनी आपकी पेमेंट्स आपको दी जाएंगी, और अगर 6 मंथ्स तक भी ये इशू सॉल्व नहीं होते या हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमलाइन नहीं होती अकॉर्डिंग टू द चेंज मेयर्स टेकन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो या अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जो चेंज मेयर्स होती हैं, ये चेंज प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस होता है, मुसलसल चल रहा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के ऊपर कर होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म के चेंजेस हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आना लाजमी बात हो जाती है। और जब आपके जैसे पूरी अब इस वक्त का अगर आप सिनारियो देखो, पूरा मुल्क बंद है, अब पूरे मुल्क बंद के यानी कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आपकी चेंजेस आते हैं तो इंटरनल इन्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही सफ़र करना शुरू हो जाती हैं, और जब वो सफ़र करती हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी लाइंस पर ओडी प्रैक्टिशनर्स ने डेवलप कर देना होता है कि वो लर्निंग हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग हो जाए और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना खुद ब खुद लर्न करना शुरू कर दे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये ओडी प्रैक्टिशनर्स का ये जो आपका साथ ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने उनको परमानेंटली हायर कर लेती हैं, परमानेंटली आपके चेंज जो ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको परमानेंटली एक डिपार्टमेंट बना देती हैं और उसका आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेते हैं कि आप लोगों के अंदर ही बैठें, और इन चेंजेस को जैसे होते हैं उनको लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों की मोटिवेशन के लिए आपका काम है कि आपने ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती और नहीं बनानी भी चाहिए, क्योंकि आपके काम की नौइयत डिफरेंट होती है। अब आईटी डिपार्टमेंट की काम की नौइयत डिफरेंट है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट की काम की नौइयत उनका डिफरेंट है, मार्केटिंग का बिल्कुल डिफरेंट है, सेल्स की उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनके अंदर चेंज मेजर्स लाने के लिए उनके मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना
बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि थोड़ी देर के लिए जब आपका 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर तो आप अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करोगे ना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और कुछ भी अगर आपने जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तब तक आप उसके अंदर चेंज नहीं ला सकोगे, आप उनको रिकमेंड नहीं कर सकते कि अब ये चीज़ों की ज़रूरत है। दैन डिटरमाइनिंग द रेलिवेंट क्लाइंट। दूसरी बात कि जब आप एक बीइंग एन ऑडी प्रैक्टिशनर तो आप क्या करते हो, डिफाइनिंग द रेलिवेंट क्लाइंट फॉर एड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़। अब आपका इश्यूज जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं, और ओडी प्रैक्टिशनर्स की जो मैंने इससे पहले बात की है कि वो उनकी जो रेलिवेंस है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आप वाकई रेलिवेंट हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या नहीं। तो ये दोनों का रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री टाइप, एंड देन ओडी प्रैक्टिशनर की एक्सपर्टीज़, ये दोनों का रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड पॉइंट इज़ वेदर इट इज़ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने ओडी प्रैक्टिशनर्स को हायर किया, और इम्प्रूविंग एन ऑलरेडी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और अ डिपार्टमेंट। अब ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन और क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, या फिर आप जो पहले ही ऑलरेडी डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स लाना चाह रहे हो, उसको लर्निंग, और या जो लेटेस्ट मेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, दूसरे आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो ले रहे हैं, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आओ। तो ये क्या चीज़ें हैं कि आपने क्लाइंट, ये हर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। डिटरमाइन योर एक्सपर्टीज इन रेलिवेंट इंडस्ट्री टू ऑपरेट। जब आप ओडी प्रैक्टिशनर हो फिर आपने क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज़ भी उसके अंदर डेवलप कर लेनी है कि मैं इस इंडस्ट्री के इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझता हूँ, या इसके कंपेटिटर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, या इस तरह की सिचुएशंस को मैं हैंडल कर चुका हूँ। तो ये आपकी एक्सपर्टीज़ में शामिल होता है। तो वो आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अपनी रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके अंदर चेंज मेजर्स लाने के लिए आपने काम करना है। देन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हैव डिफरेंट इश्यूज एज कम्पेयर टू सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर लेबर आपकी जो होती है वो इतनी वो एजुकेटेड नहीं होती, और उनके अंदर चेंज लाना, उनको उन ग्राउंड्स के ऊपर इस्टेब्लिश करना, और उनकी लर्निंग डिफरेंट तरह की होती है। जबकि सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जहाँ पर आपकी हायरिंग ही एजुकेटेड लोगों की होती है, और जो आपके ग्रास रूट एक्टिविटीज या फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं या फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी आपके वेल एजुकेटेड होते हैं। जस्ट लाइक आप अगर किसी भी टेलीकम्युनिकेशन में या बैंकिंग सेक्टर में जाते हो और उनके जब आपकी CRO कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर आप देखते हो तो वो भी अच्छे होते हैं, और वो सिर्फ आपके ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो, या फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं, और यानी कि सबसे लो भी होंगे तो वो भी आपके। अब उनको ट्रेन करना, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जहाँ पे लेबर आपकी बिल्कुल अनएजुकेटेड है, और ऐसे लोगों के साथ चेंज लेके आना, दोनों डिफरेंट होते हैं, और अपनी एक्सपर्टीज़ अपनी देखनी है आपने। और दूसरी बात, एक और बात ये होता है कि जिस तरह का बंदा होता है ना, जिस तरह की आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। सपोज़ मेरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं रहा, मुझे वहाँ का नहीं पता, मुझे लेबर के साथ नहीं मैंने डील किया हुआ आज से पहले, और लेबर से कैसे काम लेना है, और लेबर की साइकी क्या है, और वो मैंटेलिटी क्या है लोगों की। अब मुझे, जब मैं बीइंग अ वुमेन, और जब मैं इस तरह से जगहों पे जाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ यूज़ टू नहीं हूँ। दूसरी बात कि वो मुझे नहीं जानते। बीइंग अ गर्ल या वुमेन, मुझे हमेशा ये चीज़ का रखना पड़ेगा ख्याल कि मैं जिस जगह पर जा रही हूँ तो वो मेरे रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है ना। अब मेरी एक्सपर्टीज़, दूसरी बात कि मैं उस इन्वायरमेंट में काम करने को कंफर्टेबल समझूंगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सबसे पहली बात कि ऑडी प्रैक्टिशनर ने पहले ही डिफ़ाइन कर लेनी है कि ये मेरे रेलिवेंट है कि नहीं। देन कॉन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़। दूसरी बात क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अंदर चेंज मेजर्स लाना चाह रही है तो वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ या एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको हर्ट कर दें। सपोज़ एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है रिलीजन ओरिएंटेड और एम्प्लॉयज़ की,
यानी कि डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर अपना और जो उनका एक ख़ास वैल्यू सिस्टम ज़ाहिर है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ग्राउंड इस्टेब्लिश किए हुए हैं बिज़नेस ओरिएंटेड के तौर पे, तो ज़रूरी है कि उनको रिलीजियस एथनिसिटी या उस तरह की अंदर इन्वॉल्व ना हो। सपोज़ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक जो गोश्त बनाती है और गोश्त की जो है वो उसको पैकेट्स बना के उसकी कटिंग करके और उसके अंदर जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से पैकेट्स बना के गोश्त के तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या उनके या उस गोश्त का कुछ बना के, अब गोश्त का क्या है, गोश्त आ जाता है पिग का। अब पिग को खाने से मुसलमानों के लिए मना किया गया। वहाँ पे आपको पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज 25% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो जब मुस्लिम्स ऐसे जगह पर काम करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ हर्ट हो सकती हैं। और जबकि वो अगर वो सेल आउट कर रहे हैं फॉर द अदर रिलीजियस मेंबर्स, तो क्या होता है कि वो अब उनके साथ आपकी जो भी आप अपना जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी हर्ट होंगी, मुस्लिम्स की वैल्यूज़ हर्ट होंगी। दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को या हिंदू एम्प्लॉयज़ को हायर कर देते हो तो और आप अपना बीफ को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाते हो, बीफ को कटिंग करके और सारा कुछ आप उसको थ्रू आउट द कंट्री आप करना शुरू कर देते हो। और वहाँ पे तो अब जब आप बीफ की बात करोगे तो वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो हर्ट होगी। सो वैल्यू सिस्टम, सबसे पहली बात कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये आपको पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं कि हम लोग किस कंसर्न है, हमारी असल में मकसद क्या है चीज़ का, हम क्या चीज़ सेल आउट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको हमेशा ये बात को ख्याल रखना है कि जो भी आप एम्प्लॉयज़ पहले हायर कर रहे हो तो आपने आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो उनकी वैल्यूज़ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ दोनों मैच करें। आपको ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ जो है पर्सनल वैल्यूज़ वो मैच नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। और दूसरी बात, जब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वहाँ पर मुस्लिम्स काम करते हैं और यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी हर तरह की बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इंटरेस्ट का काम होता है। और इंटरेस्ट का काम जो है वो मुस्लिम्स के लिए एक हराम कहा गया कि सूद लेना हराम होता है। तो अब जो कम्युनिटी है अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड पीपल हैं या रिलीजन से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आते हैं कि जहाँ पे हमने क्लाइंट के साथ इंटरेस्ट का काम करना है तो उधर वहाँ पे उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करते जो कि उनको पर्टिकुलरली रिलीजन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। दूसरी बात कि सपोज़ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं और बहुत सारी जगहों पर मैटर करती हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी जो इस्टेब्लिश इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरे का पूरा इंटरेस्ट बेस्ड बन चुका हुआ है और इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बिकॉज ये ग्लोबलाइजेशन है और पूरी दुनिया के अंदर वहाँ पर जब जिस तरह से काम कर रहा होता है तो उन ग्राउंड्स के ऊपर ही पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज़ को भी उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब वो कितने अब जब आपकी फीलिंग्स हर्ट होती जा रही हैं, एक एम्प्लॉय की फीलिंग्स हमेशा हर वक्त हर्ट हो रही हैं, तो वो अपना फुल पोटेंशियल उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकेगा, वो हमेशा वहाँ से भागने की करेगा। दूसरी बात और कि आपने अपना रेलिवेंट एम्प्लॉय जिस तरह का आपका है, आपकी वैल्यूज़ और आपके क्लाइंट की वैल्यूज़, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ आपस में मैच करनी चाहिए। देन क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इट्स प्रेफरेंस आफ्टर द प्रॉब्लम्स डिस्प्लेड बिफोर दैम। अब ये भी हो सकता है कि आपने एक सर्वे किया ऑर्गेनाइजेशन वाइड और वहाँ से आपने कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। अब वो जो थी वो प्रॉब्लम्स क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनको इतना आइडिया नहीं था। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ये कह दें कि आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि आप इनको ना करें, आप इनको सॉल्व ना करें। तो ये पॉसिबिलिटी है, हर तरह की पॉसिबिलिटी ओडी प्रैक्टिशनर्स को फेस करनी पड़ती है। देन डिफाइनिंग प्रिलिमिनरी मैनर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स और इश्यूज, ये हमने बात डिस्कस कर लिया है। देन सिलेक्टिंग एन ओडी प्रैक्टिशनर। अब देखिए कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ओडी प्रैक्टिशनर्स को हायर करना चाह रही हैं।
हायर करना चाह रही हैं कि वो उनके रेलिवेंट हो, जो प्रैक्टिशनर है वो आपकी प्रॉब्लम को समझता भी हो और उसका सोल्यूशन भी उसके पास हो, ठीक है। आपका रेलिवेंट डॉक्टर हो, रेलिवेंट जैसे आप आपकी जिस तरह की जो डिजीज़ होगी या कोई भी बीमारी होगी, आप उससे चाहोगे तो कि आपके पास आपके रेलिवेंट डॉक्टर के पास मैं जाऊँ। अब ये पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये जो आपका चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं होता, और जिस तरह से आपने डॉक्टर के जाके आपने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की और उसने उसका सोल्यूशन दे दिया और वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, तो आपने सोल्यूशन दे दिया, आपको मेडिसिन रिकमेंड कर दिया, आपने मेडिसिन खाई और वो ठीक हो गया। लेकिन ऐसे कि जो सोशल चेंज जो होते हैं, जो सोशल चेंज प्रोसेसेस होते हैं, इसके अंदर आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं और हर एम्प्लॉय की साइकी, उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और आपकी भी जो ऑडी प्रैक्टिशनर है उसकी भी एक ख़ास तरह की साइकी मेंटालिटी होगी और एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी एक साइकी मेंटालिटी होगी। सो आपको जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे पहले अपना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पर उसकी वैल्यूज़ भी उसके साथ ओडी के प्रैक्टिशनर के साथ मैच करें और वो अपने आपकी प्रॉब्लम का हल भी लेके आ सके। और दूसरी बात ये यानी कि वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये कॉन्टीन्यूस होता है, चेंज इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंसल्टिंग, अब आपके जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की जुरिसडिक्शन के ऊपर होता है कि उनकी मर्ज़ी है ना, उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं या वो इंटरनल कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। अब इंटरनल कंसल्टेंट्स ये होते हैं कि आपके कुछ मैनेजर्स हैं और वो अच्छे मैनेजर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो जानते हैं और काफ़ी देर से आपके साथ काम कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आप उनको क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा टास्क दे देते हो और उनको कहते हो कि आप ये टास्क हैं हमारे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन ईयर्स के ऊपर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप आप हमारे जो है ना चेंज एजेंट्स के तौर पे काम करना शुरू कर दें, या उनको एक्स्ट्रा टास्क दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप इनके ऊपर आप हमारे साथ मिलके इनके ऊपर काम करें, ये चीज़ें आप लेके आएँ या इनके ऊपर इन चेंज मेजर्स को हमारे लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल बनाएं। सो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करेगा। अब इंटरनल कंसल्टेंट्स की और इंटरनल कंसल्टेंट्स में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस इस वजह से होता है कि इंटरनल जो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ वैसे ही नो हाउ उनकी पहले ही होती है और उनको इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपनी रैपो बिल्डअप करें और उसके बाद फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो हैं प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई करें, फिर उनका सोल्यूशन लेके आएँ, ठीक है। अब जबकि एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स जो हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि उनका पहला इंटरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, चीज़ों को समझेंगे, समझने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने रैपो बिल्डअप करेंगे और रैपो बिल्डअप करने के बाद फिर आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। तो अब ये जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो उनके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का ज़ाहिर है कि वो एक्सपर्ट्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना आता हुई होगा। तो और जबकि जो इंटरनल कंसल्टेंट्स होंगे वो उनके पास पहले ही नॉलेज होगा कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और हम लोग इनको लेके चलना, इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो दोनों में डिफरेंस है और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रैक्टिशनर्स को हायर करती है। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर करने की कोई ना कोई रीज़न या फिर आप समझ लो उनकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट है। अब एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की, जिस तरह से अगर हम एंटरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जैसे एंटरिंग हम अभी बात करते हुए चल रहे हैं वहाँ से, तो सोर्स क्लाइंट्स मतलब कि एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ये आपको सोर्स करना पड़ता है कि ओडी प्रैक्टिशनर को या फिर आपके जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं या कौन से प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैन दिट बिल्ड रिलेशनशिप्स, आपको ख़ासतौर पे अपना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ता है। दैन लर्न कंपनी जार्गन्स, आप जो हर कंपनी के अपने अपने जार्गन्स होते हैं कि जो स्लैंग लैंग्वेजेस होती हैं या उनके कीवर्ड्स होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से, या कोरेस्पोंडेंस के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे JR लिख दिया किसी ने। अब JR का मतलब किसी को पता होगा या उनकी टर्म्स होंगी, उनकी प्रोडक्ट्स होंगी, AMF है जैसे
तो अब वो हर एक को नहीं पता होगा AMF का क्या मतलब है, JR का क्या मतलब है, CT का क्या मतलब है, कि जार्गन्स हैं जो कि हो जाते हैं और सारे लोगों की टिप्स के ऊपर होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को सबसे पहले उन जार्गन्स को समझना पड़ेगा। अच्छा ये क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर ये CP की बात कर रहे हैं तो क्लास पार्टिसिपेशन, अब उनके जहन में नहीं होगा कि क्लास पार्टिसिपेशन CP क्या चीज़ होती है। देन अब लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि ये CP क्या चीज़ होती है। देन प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम चैलेंज, देन टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रेसफुल फेज, ये सारे जो हैं select project client according to own criteria, then unpredictable outcomes। अब ये भी नहीं पता कि वो जो एक्सटर्नल आपने हायर किए हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सही तरह से आइडेंटिफाई करके लाए हैं या नहीं लाए, और या फिर आपकी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उन चीज़ों को जिस हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाह रहे हो, जिन ग्राउंड्स के ऊपर या जो डायरेक्शन देना चाह रहे हो वो भी करके लाए हैं कि नहीं। सो आपका जो रिस्क है वो हर तरफ से इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, इंटरनल कंसल्टेंट्स की जब हम बात करते हैं, रेडी एक्सेस टू क्लाइंट्स हैं क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं और वो आपके क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। दैन रेडी रिलेशनशिप्स हैं और नो कंपनी जार्गन्स, ये भी सब कुछ जार्गन्स को वो जानते हैं। दैन अंडरस्टैंड रूट कॉजेज, आपकी सारी रूट कॉजेज को वो जानते हैं। दैन टाइम एफिशिएंट होता है, मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती उनको इंटरनल कंसल्टेंट्स को। दैन कॉन्जेनियल फेजेस होते हैं कि जब अब खुशगवार लम्हात होते हैं, मतलब कंजेनियल फेजेस कि अगर इस तरह की इतने लेवल की प्रोडक्टिविटी आ गई तो वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश हो रहे हैं, तो कंजेनियल फेजेस हैं। देन ओब्लाइज टू वर्क विद एवरीवन, अब वो हर एक के साथ काम करना इजी समझते हैं क्योंकि वो इंटरनल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ नो हाउ रखते हैं। देन स्टडी पे, अब अभी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को जब हायर करते हो तो उनके साथ एक ख़ास पैकेज और ख़ास उसके इस्टेब्लिश कर लेते हो पहले से ही, जबकि जब इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं आप इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ही एक ख़ास एक्स्ट्रा काम आप देना चाह रहे हो, तो आपकी हो सकता है कि जब आप वही पे देते रहो और जबकि एक एक्स्ट्रा टास्क आपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया और उनकी आप जो है वो प्रोडक्टिविटी, उसके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ही उसके ऊपर मैयर कर रहे हो कि अगर आप ये वाले मैयर्स को चेंज मैयर्स को लेके आओगे या सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करोगे तो फिर ये जो है आपकी पे इंक्रीज़ की जाएगी। सो ये रिस्की है। इंटरनल अगर आपके मैनेजर्स हैं और वो आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी दे दिया है, तो ये आपके एम्प्लॉय एंड के ऊपर भी कि वो कितना आपके साथ खुश हैं। सो ये आपकी बातें इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसल्टेंट की। देन कॉन्ट्रैक्टिंग जो होता है, एंटरिंग, जब आप एंटर हो रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देन कॉन्ट्रैक्टिंग, देन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इधर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं कि अब ये चेंज मैयर आ गया तो हम लोग आपको इतना पे करेंगे या इससे ज़्यादा पे कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग से इतना ज़्यादा पे करेंगे। देन कैन टर्मिनेट प्रोजेक्ट एट विल, ठीक है। ये अब इन दोनों का रिलेशनशिप जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट्स हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की जो अगर आपकी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतनी अच्छी रेपो बिल्ड नहीं हो सकी या कम्युनिकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन दोनों का जो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी आइडेंटिफाइड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समझ ही नहीं आ सकी या वो समझ ही नहीं सके ये आपके किन ग्राउंड्स पे आप उनको इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, आपकी वैल्यूज़ उनके साथ डिफर कर रही हैं, तो वो क्या होता है कि आपका टर्मिनेट हो सकता है प्रोजेक्ट का, जो भी आप उसको ख़त्म कर सकते हो, आपके जो भी चेंज में लाना चाह रहे हो। देन गार्ड अगेंस्ट आउट ऑफ दी पॉकेट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आपको जाहिर है कि आपने एक रिस्क लिया है, इस तरह के कंसल्टेंट्स को हायर किया है, तो अब आप आउट ऑफ दी वे भी जा रहे हो, अपने अखराजात भी उसके ऊपर लगा रहे हो। देन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, फिर आप ये हो सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप ज़ाहिर है कि आपके पास वो जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हैं वो 6 मंथ्स तक काम करेंगे और इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो लीक आउट होने का अगर आपको ख़तरा है, वो बाहर चली जाएंगी। अगर वो कल को आपकी क्लाइंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कंपेटिटर के साथ काम करते हैं तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी लीक आउट हो सकती है। सो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट स्टेक, यानी कि आपके स्टेक के ऊपर होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। देन मेंटेन थर्ड पार्टी रोल,
और आप थर्ड पार्टीज़ जो हैं उसके ऊपर भी यानी कि वो थर्ड पार्टी होती है ना, तो वो भी उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। जैसे ऑडी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी वो किस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं और किस कंपनी ने उनको भेजा है, और इनकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आप जैसा से क्लाइंट की जो भी डिमांड थी उसके मुताबिक उन्होंने इसको आपके पास भेजा। तो थर्ड पार्टी के जो रोल है वो भी इधर मैटर करता है। देन मस्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे इंटरनल कंसल्टेंट्स में मस्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट्स असाइंड, और जो भी आपको दिया जाता है इंटरनल कंसल्टेंट्स को वो आपको करना ही करना है। नो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे ऑर्गेनाइजेशन के। इन्फॉर्मेशन कैन बी ओपन और कॉन्फिडेंशियल, आप उनके सामने हर तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। रिस्क ऑफ क्लाइंट रिटेलिएशन एंड लॉस ऑफ जॉब एट स्टेक। अब देखिए रिटेलिएशन होता है कि ये अब जिसने भी इस तरह का रिस्क लिया है इंटरनल आपके इंटरनल एम्प्लॉई ने कि मैं इस तरह की चेंज मेजर्स लेके आऊँगा, तो ये आपको बैक फायर भी कर सकता है। रिटेलिएशन का मतलब है कि बैक फायर, आपको अगर आपसे कुछ काम गलत हो जाए तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो फिर एक्ट्स एज ए थर्ड पार्टी ड्राइवर और ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और पेयर ऑफ हैंड्स। सो ये आपकी एंटरिंग है, देन कॉन्ट्रैक्टिंग, देन डायग्नोजिंग। डायग्नोज होता है कि आपने टेस्ट, जैसा होता है ना एक मेडिकल टेस्ट होता है कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, वो डायग्नोजिंग यही चीज़ है कि आपने अपना डाटा गैदर करना है ऑर्गेनाइजेशन के से, और आपने देखना है कि ये जो है ये जो भी डाटा आपका गैदर होगा ऑर्गेनाइजेशंस का, आपने जो डाटा गैदर किया है वो कैसे गैदर किया है, जैसे उस तरह के उसके भी वेज हैं बहुत सारे। तो ये डायग्नोजिंग को हम लोग नेक्स्ट में, ये भी डिपेंड करता है कि अब एक्सटर्नल का जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की जो है डायग्नोजिंग का क्या मेथड है, एंड इंटरनल कंसल्टेंट्स की डायग्नोजिंग का क्या मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्नोजिंग जो है मीट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले मिलते हैं और सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं और उनसे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और उस तरह की। अब वो एक वन टाइम एक्टिविटी या वन टाइम इंटरेक्शन जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम फोकस नहीं होती बल्कि इंट्रोडक्टरी लेवल की होती है, और एम्प्लॉइज़ के साथ आपका सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो सकता है उस टाइम के अंदर। देन प्रेस्टीज फ्रॉम बीइंग एक्सटर्नल, यानी कि आप एक ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट, बीइंग एक्सटर्नल कंसल्टेंट के आपकी एक प्रेस्टीज की भी बात होती है, आपकी इज्जत की भी बात होती है कि आपको उन्होंने हायर किया है और कुछ प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड बिल्ड ट्रस्ट क्विकली, वो कर जाए कि एक्सटर्नल होते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रस्ट भी वो कर लेते हैं, आपके ट्रस्ट अपना जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो उसको जल्दी कर लेते हैं। उनको पता होता है कि आपने, ये ज़ाहिर है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है बल्कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है ताकि आप उस प्रॉब्लम तक, उसकी रूट कॉज तक जा सकें। देन कॉन्फिडेंशियल डाटा कैन इंक्रीज पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़। सो ये इस तरह का डाटा भी कर सकता है, आप डाटा आपके साथ शेयर ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई करके आपको किस किस्म का डाटा चाहिए होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरनल कंसल्टेंट्स हैं डायग्नोजिंग के अंदर, हैज़ रिलेशनशिप विद मैनी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, फिर देन प्रेस्टीज डिटरमाइंड बाय जॉब रैंक एंड क्लाइंट स्टेचर। मीन के जो आपकी प्रेस्टीज है आपकी जॉब रैंक के मुताबिक होती है, आपकी उसकी इज़्ज़त जो है वो उसके मुताबिक होती है, और उसको वो भी एट स्टेक आ सकती है ना। और दूसरी बात वो भी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए ओडी प्रैक्टिशनर या ओडी कंसल्टेंट आपको एक पोजीशन दे दी है। देन सस्टेन रेपुटेशन एज ट्रस्ट वर्दी ओवर टाइम, देन डाटा ओपनली शेयर्ड कैन रिड्यूस पॉलिटिकल इंट्रिग। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ें याद रखी हैं। अब इंटरवीनिंग क्या होता है, अब ये एंटरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, देन डायग्नोजिंग जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो। अब टेस्ट किसके थ्रू हो सकता है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, सर्वे मेथड्स हो सकते हैं, और हर एक की अपनी अपनी यूटिलिटी है। जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन की कहीं से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। ज़ाहिर है कि आपकी एक प्रेजेंट स्टेज ऑर्गेनाइजेशन की देखनी होती है कि इस वक्त वो किस स्टेज के ऊपर है, और उनको प्रेजेंट स्टेज के से आपने
किस हायर स्टेज के ऊपर लेके जाना है। देन इंटरवीनिंग, अच्छा ये जो इंटरवीनिंग एंड इवेल्युएटिंग है, ये भी एक काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर हमारा ये वाला जो इंटरवीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये चलेगा। 4 to 5 वीक्स ही हम लोग यही इंटरवीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरवीन का मतलब है कि आप मदाखलत करना, इंटरवीनिंग मदाखलत करना। आप मदाखलत कैसे करें, ओडी प्रैक्टिशनर है ना, तो उसमें ज़ाहिर है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरवीन करना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर रोबोट्स तो काम नहीं करते ना, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इंसान काम करते हैं। सो उनको हर डिपार्टमेंट के अंदर की जो है इंटरवेंशन उनकी एक नोट की जाएगी और इंटरवीन करेंगे। इंसिस्ट ऑन वैलिड इंफॉर्मेशन, फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड इंटरनल कमिटमेंट। देन कन्फाइन एक्टिविटीज़ विद इन बाउंड्रीज ऑफ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि इंटरवीनिंग का मतलब है कि मुदाखलत करना। अब ओडी प्रैक्टिशनर कॉन्ट्रैक्टिंग के दौरान या जब वो इस के अंदर होते हैं तो उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे से ले सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने नहीं छेड़ना। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाना, उनके मेंबर्स को के साथ इंटरव्यू भी नहीं करना। ये पहले ही आप कर सकते हो कि पहले ही कर देते हो कि आपने उनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं और वो हमारे डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ये भी कह सकते हैं आपको। तो ये बात है कि जो अब वहाँ पे जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उनके पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कॉस्ट सेविंग के या सप्लायर्स आपके कौन से हैं, सप्लायर आपको क्या रेट दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि कंपेटिटर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है। तो आपने कि पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेना होता है कि अगर आपको इसी किस्म की हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं तो आप हमारे कंपेटिटर के साथ या उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, और जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी वो आप किसी और क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की और उसमें एंट्री के लिए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत सारे मैटर्स बहुत ज़रूरी हैं और पहले ही सॉल्व करना। देन जो इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं तो इंसिस्ट ऑन वैलिड इंफॉर्मेशन, फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड इंटरनल कमिटमेंट। उनकी इंटरनल कमिटमेंट क्योंकि वो पहले ही एम्प्लॉइज होते हैं। एंड देन रन इंटरफेरेंस फॉर एम्प्लॉई फॉर क्लाइंट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लाइन्स टू अलाइन सपोर्ट। ये यहाँ पर क्या है कि आपको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चेंज मेजर्स लाने के लिए तो वो आपके सपोर्ट करते हैं जो इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं। देन इवेलुएटिंग, अब रिलाई ऑन रिपीट बिजनेस एंड कस्टमर रेफरल एज की मेजर्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। देन सेल्डम सी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ओके, ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को कम देखते हैं। देन इसके कंपैरिजन में रिलाई ऑन रिपीट बिजनेस, पे रेज एंड प्रमोशन एज की मेजर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, वो उनको सक्सेस तब उनको नज़र आएगी जब वो जो चेंज मेजर्स लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको वो वेलकम भी करेंगे, उनको बता भी देंगे कि हाँ ये आपके बिहाफ पे आपने अच्छा काम किया है। तो उस हिसाब से कैन सी चेंज बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब वो और वो सक्सेसफुल भी रहा है, जो भी चेंज मेजर आपने रिकमेंड की थी वो सक्सेसफुल भी रही है। लिटल रिकॉग्निशन फॉर जॉब वेल डन। और ऐसा होता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ को जब ये काम दिया जाता है ज़्यादातर क्या होता है कि उनकी रिकॉग्निशन कम की जाती है, जिसकी वजह से मोरल डाउन हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, और ज़्यादातर लोग इंटरनल कंसल्टेंट के तौर पे काम नहीं करना चाहते। तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो इंटरनल कंसल्टेंट्स का भी, और उनको प्रेजेंट जॉब्स अब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हमेशा ही अपनी कॉस्ट कटिंग या एक्सपेंसेस का नहीं होना चाहिए। अगर वो लाना चाह रहे हैं प्लान्ड चेंज मेजर्स लाना चाह रहे हैं तो उनको हर तरह की सहूलत भी अपने इंटरनल कस्टमर्स को एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेंगी। दैन डेवलपिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ ओडी प्रोसेस विल प्रोसीड, ये आपका जो डेवलपमेंट का जो बेसिक है। विल इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ ओडी प्रैक्टिशनर्स टीम, कि हमारी टीम किन किन जगहों पे जाएगी और किन क्या क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेगी। इट मे बी इनफॉर्मल और फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। और म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन नीड्स टू बी क्लेरिफाइड, जो भी आपकी म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन है, आप प्रैक्टिशनर से क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो
हो और आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चेंज मेजर्स लाना चाह रहे हो, ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लैरिफाई होनी ज़रूरी है। टाइम एंड रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज, किस किस्म के टाइम चाहिए होगा और ये रिसोर्सेज कौन से यूटिलाइज करेंगे। ग्राउंड लेवल नीड्स टू बी रिटर्न, जो भी आपके रूल्स हैं वो सारे रिटर्न राइट डाउन करने हैं। तो हाउ टू टर्मिनेट अ रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप कब ख़त्म होगा, एंड हाउ टू हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आपने किसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर्स में भी बहुत सारे वेरी करते हैं, तो कौन से डायरेक्टर से कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ये भी आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कर लेना है। देन हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, एंड देन हाउ टू डिलीवर बैड न्यूज़ इफ एनी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के उसके दौरान चेंज मेजर्स लाने के दौरान आपको कुछ ऐसे पता चल जाती हैं, बैड न्यूज़ पता चल जाती हैं, तो वो आपने किन के साथ शेयर करनी है और कौन से जो हैं रेलेवेंट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपने बात करनी है।